So today we are going to discuss about the marine fishery resources of the world. Okay. So today we will discuss about that. So when I'm talking about the marine fishery resource, okay. So anyone can tell me what comes under the marine fishery resource? कौन सी चीजें हैं जिसको हम consider कर सकते हैं fishery resource of the marine environment or the ocean? Anyone? I'm audible? सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है? Okay. So what comes under the marine fishery resources? कोई बताएगा? Anyone? अच्छा, we had one course ना inland fisheries. आप सबने पढ़ा ना inland fisheries? Okay. So when we have studied the inland fisheries, then we have talked about the inland fishery resources. तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? Anyone? क्या बात है, कोई कुछ रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर? inland fisheries में क्या पढ़ा था? रिवर था, Rivers. We have ponds, lakes. we talked about pond, lake. yes, we basically talked about the inland water bodies, is it? और क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ी थी जितनी भी inland fisheries होती हैं, जैसे कि we studied about the riverine fisheries, we studied about the lacustrine fisheries, we studied about the estuarine fisheries. पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? Is it? Yes, ma'am. Yes, और उसमें जो आ गया cold water fisheries, we have all studied all those things, and then we have also studied कि कौन कौन सी major economically important species है. Okay, riverine fisheries में, lacustrine में, reservoir fisheries में, cold water fisheries में, estuarine fisheries में, ये सारी चीजें we have studied. So the same when we talk about the marine fishery resources, so here we will talk about the marine water bodies. Is it? Means ocean and sea. Clear हुई बात? So see, when we talk about the marine fishery resources, two major components we will talk about. One is the ocean and the sea, means the marine water body, okay, and then the fish fauna, the aquatic species, the economically important fish species, okay, which includes the fin fishes, which includes shellfishes, in shellfishes the crustaceans and mollusca, and also some economically important aquatic weeds and algae. Okay, so when we talk about marine fishery resources, we talk about this. Okay, so today we are going to discuss about the marine fishery resources of the world. Okay, so as I have told, there is a two component. One belongs to one we are considering about the water bodies, marine water bodies, and another one is the fish fauna, which includes finfish, crustacea, mollusca, and some aquatic weeds and algae. Okay, so here this is our map of the marine fishery resource. When we talk about the, here we have basically seen the major oceans like North Pacific Ocean, South Pacific Ocean, North Atlantic Ocean, South Atlantic Oceans, Indian Ocean, Antarctic Ocean, and Arctic Ocean, and then Southern Ocean. So these are the oceans, and then there are the sea. Here you can see that Mediterranean Sea, Black Sea, Caspian Sea, Red Sea, Andaman Sea, East China Sea, Japan Sea, Bering Sea, Coral Sea, North Sea, Baltic Sea, Hudson Bay, Gulf of Mexico, Caribbean Sea. Then okay, so these are the marine in oceans and sea where the fishing activities are operational. The commercial fishing operations takes place in these oceans. Okay, so we will we will talk about these oceans or these aquatic resources one by one. First we will talk about the different oceans and sea, and then the important economically important fish fauna. Okay, so first the overview. So actually the FAO has performed the studies on the 200 landing centers. Okay, 200 marine landing centers. Okay, different landing centers, and then they made some conclusion on the fish on the fishery resources. Okay, so as per the
the data which is provided by the FAO, which was based on from several years of study from different marine landing centers. They concluded that both the Atlantic Sea and the Atlantic and the Pacific Oceans, they both are fully fished. Means वो उनका जो commercial exploitation है वो almost अपने मैक्स लेवल पे पहुंच गया है. तो जो पोटेंशियल है जहाँ पे हम फिशरीज इंक्रीज कर सकते हैं, जहाँ पे हम कैप्चर का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे कैप्चर बढ़ सकता है, और that is the Indian Ocean. Okay, so the FAO told the Atlantic and Pacific Ocean is almost fully fished या economically exploited है. अभी जो पोटेंशियल है इंक्रीज करने का मरीन कैप्चर, मरीन फिशेस के कैप्चर को या मरीन फिशरी रिसोर्सेज को जो मतलब फिश स्पीसीज को जो हार्वेस्ट करने का, कैप्चर करने का जो पोटेंशियल है, दैट कैन बी इंक्रीज्ड इन द इंडियन ओशन फिशरीज, क्योंकि वहाँ वो जो इंडियन ओशन है वो अभी फुली एक्सप्लॉइटेड नहीं है. Then they have also made some conclusion like 47 to 50% of the stocks, the fish stocks are fully exploited. Okay, and about 25 to 27% are the fish stock which is underexploited or moderately exploited. Means these are fishes or the fish fauna which have a great economical potential. Okay, but these are underexploited or they are harvested less than it can be. Okay, and then there is around 15 to 18% of the fish stock which are actually overexploited. Okay, and आप किसी भी तरीके से, चाहे आप कंजर्वेशन मेजर्स करें, चाहे आप फिशिंग क्या कहते हैं रेगुलेट करें, आप फिशिंग वेसल्स रेगुलेट करें, मेस साइज रेगुलेट करें, या फिशिंग का सीजन को कुछ बैन सीजन लगाएं, उसके बाद भी अराउंड 15 to 18% ऐसा स्टॉक है जो ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है, और बहुत जल्दी आप अब उसमें कोई फर्दर इंक्रीज के लिए कोई पोटेंशियल नहीं बचा है. ठीक है, if you can regulate it and then you can regulate and conserve for several years up to 40-50 years, तब हो सकता है कि स्टॉक जो है वो फिर से रिवाइव करे and then it can be further exploited for the commercial activities. और यहाँ पे तकरीबन रिमेनिंग 9 to 10% स्टॉक है जो डिप्लीट हो गया, जो खत्म ही हो गया. अब आप उसको कुछ भी करके जो है वो रिवाइव नहीं कर सकते. So this is actually the current status of the marine resources of the world. Now मेजर फिशरीज, अगर मैं फिशरीज की बात करूँ तो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, ओके, द एडमिनिस्ट्रेटिव जोन और द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देन वी हैव टॉक दैट कि हाँ इतना एरिया है अप टू द 200 क्या कहते हैं आपका नॉटिकल्स जो है वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, कोस्ट से लेके अंदर सी तक जो वो कंट्रीज का कोस्ट है. तो उसमें भी जो दो एरिया, जो मेजर एरिया होते हैं फिशिंग के, बेसिकली ओशन में दो ही हैं, एक वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और एक अपवेलिंग एरिया है. कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको पता है ना, जब आप नेरेटिक वाटर से आगे की तरफ मूव करते हैं, यानी शोर से जब आगे मूव करते हैं तो थोड़े दूर तक एकदम धीरे 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 जो है वो स्लोपिंग होता है बॉटम पे, और देन देयर इज अ सडन ड्रॉप होता है जिसको कि हम कॉन्टिनेंटल ड्रॉप बोलते हैं. तो ड्रॉप से, शोर से लेके ड्रॉप के बीच का जो एरिया होता है, दैट इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ओके, सो जो मेजर फिशिंग एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं इन द एंटायर वर्ल्ड इन द ओशियन, दैट इज ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ और अपवेलिंग एरिया. अपवेलिंग एरियाज वो होते हैं जहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जब मॉनसून में न्यूट्रिएंट मिक्सिंग होती है, नीचे की चीज़ें ऊपर आती हैं और फिर वो मिक्स होती है. तो जो दो एरिया हैं ओशंस में, द वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड अपवेलिंग एरियाज, वही एरियाज जो हैं जहाँ पे मेजर फिशिंग ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ पे मेजर फिशरीज होती है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती है कैप्चर फिशरीज की. ओके, सो जो एरिया ऑफ अपवेलिंग है दैट इंक्लूड द पेरू, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, सॉरी कैलिफोर्निया एंड साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. इसके बाद बाकी जितने बचते हैं उसमें जो मेजर फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं दैट इज़ ऑन दी वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ओके, सो नाउ ये है आपका टोटल फिश प्रोडक्शन, ये 86 से लेकर 2018 तक का डेटा है. सो इफ़ यू लुक एट हेयर द मरीन प्रोडक्शन की बात करें, कैप्चर की, फिर चाहे वो इनलैंड से हो चाहे मरीन, मतलब चाहे वो सिर्फ कैप्चर फिशरी की बात करें, चाहे वो मरीन हो चाहे वो इनलैंड हो,
तो आप देखेंगे देर इज बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। ओके 86.9 मिलियन टन से लेकर के नाउ इट इज़ 96.4 मिलियन टन, ऑलमोस्ट स्टैटिक है। ठीक है, बट अगर हम प्रोडक्शन की बात करें एक्वाकल्चर में, सो यू कैन सी दैट कि इट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 101 101 ना 101.8 मिलियन टन से इट हैज़ इंक्रीज अप टू 178.5 मिलियन टन्स। ओके सो जो कैप्चर फिशरीज है, चाहे वो इनलैंड हो चाहे आपकी मेरीन हो, इनलैंड में तो फिर भी आप देखिए 6.4 मिलियन टन से इट हैज़ रीच टू द in 2018 12 million tons, almost double हुआ है inland में capture. But when we talk about the capture in the marine or in the ocean, here you can see that it is almost static, 80.5, then 83, 79.3, 78.3, 81, and in the 2018 it is 84.4. okay, सो जो कैप्चर है वो इनलैंड में तो डबल हुआ है इतने सालों में, बट मरीन में ऑलमोस्ट स्टैटिक चल रहा है। और अगर टोटल कैप्चर की बात करें मरीन प्लस इनलैंड, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 101.8 मिलियन टन्स टू द 178.5 मिलियन टन्स। ओके, एंड नाउ कैसे उसका ह्यूमन कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ है। the human consumption of fish has increased from 7.8 million टन से लेकर के अभी ये है डबल से भी ज़्यादा है 156.4 मिलियन टन। इसमें से जो फिशेज हैं, ये दिस इज ह्यूमन कंजम्पशन मीन्स फॉर फूड, और नॉन फूड यूज़ में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। नॉन फूड यूज़ होते हैं जैसे कि आपका ऑयल में है, ऑयल बनाने के लिए है, या फिर फीड, फिश फीड जो बनता है उन सब में जो यूज़ होता है, दैट इज़ अ नॉन फूड यूज़। ओके, सो दैट वाज ऑल्दो हाईएस्ट इन समवेयर इन द, ये वाला जो स्पैन है 1986 से 1995 अराउंड 30 मिलियन टन है, जो कि अभी कम होकर 22.2 मिलियन टन है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन इधर इंक्रीज हुआ है। ओके, और पर कैपिटा जो कंजम्पशन है केजी में, वो भी इंक्रीज हुआ है 13.4 से नाउ इट इज हाईएस्ट 20.5 kg. ओके, so this is about the total fish production. नाउ द टोटल मरीन कैप्चर फिशरी प्रोडक्शन, दिस ये जो आप देख रहे हैं ना ऑरेंज कलर का जो पार्ट है, दिस इज द कैप्चर फिशरीज फ्रॉम द मरीन वाटर्स मीन्स ओशन एंड सी। तो आप देखिए ये फ्रॉम 50 सो इट इंक्रीज है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखते हैं अराउंड 90 से या 86 से देखिए, सो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। ओके, देर इज ऑलमोस्ट एक प्लेटो सा है। ऑल्दो अगर आप एक्वाकल्चर में देख रहे हैं, चाहे इनलैंड में देखें चाहे मरीन में देखें, इधर जो है इट हैज़ अ इंक्रीजिंग ट्रेंड। ओके, now the marine capture production of the 2018. okay, so आपका जो टॉप प्रोड्यूसर है अगर मरीन कैप्चर की बात करें, सो दैट इज चाइना। चाइना का जो कैप्चर है मरीन का, दैट इज 12.68 मिलियन टन्स, जो कि टोटल जो मरीन कैप्चर प्रोडक्शन है वर्ल्ड का उसका 18% है। फॉलोड बाय द सेकेंड कंट्री है आपका पेरू, जिसका 8% है, देन इंडोनेशिया 8%, followed by Russian Federation 6%, then United States of America 6%, then India have the 6th rank on total marine capture production in 2018, and Vietnam have the 7th rank. तो अगर मैं टॉप 7 कंट्रीज की बात करूँ, जो टॉप 7 प्रोड्यूसर्स हैं मरीन, सिर्फ कैप्चर की बात कर रही हूँ, मरीन कल्चर की नहीं, मरीन कैप्चर प्रोड्यूसर्स की बात करूँ अगर मैं 2018 में, so टॉप 7 कंट्रीज में China is on the top, which actually accounts for the 15% of the total marine capture production of the world, followed by the Peru, then the Indonesia, Russia, United States. India has the 6th rank with the 4% of the total marine capture production, and 7th one is the Vietnam. Now, species wise capture production means वो कौन सी स्पीसीज का कैप्चर सबसे ज़्यादा, कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा कैप्चर एक्सप्लॉइटेड है फ्रॉम 2004 टू द 2018. सो दिस इज द एंचोविटा विच हैव द हाईएस्ट, आप देखें 2018 में इट इज 7,000 टन्स. ओके,
7,000 45,000 टन्स। इसका जो टोटल परसेंटेज है टोटल स्पीसीज की, अगर फिन फिशेस की बात करूं तो 10% अकेले सिर्फ इसी स्पीसीज का है, followed by the Alaska polar, then skipjack tuna, followed by the Atlantic herring, then blue whiting, then European pilchards, then Pacific chub mackerel, yellowfin tuna, then sards and Atlantic cods. Okay, so these are the top 10 fin fishes. Okay, in the capture marine capture species. Then these are the crustacean species. So on the top is the Nanantia decapods, followed by the Gazami crab. Okay, so these are the species crustaceans. Then the marine mollusk. Okay, so the jumbo flying squid, this is on the top. It actually constitute the 15% of total molluscan capture of the world. Okay, followed by another marine mollusk, then some squids, cuttlefish, cephalopods, scallop, and others. Okay, now the word marine fishing areas. Okay, so FAO actually divide the entire world oceans into different fishing areas. So they basically they divide 19 parts. Okay, जितनी भी जो आपका ओशन या सी है, जो भी फिशिंग एरियाज है जहाँ फिशिंग होती है, उसको उन्होंने 19 पार्ट्स में डिवाइड किया. आउट ऑफ दोज 19 पार्ट्स 15 आर द मेजर फिशिंग एरियाज, मतलब जहाँ पे जो मैक्सिमम फिशिंग हो रही है, कैप्चर फिशिंग हो रही है, इन्हीं 15 एरियाज से हो रही है. यहाँ स्टॉक भी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, फिशिंग ऑपरेशंस और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हैं. और 4 इनके माइनर फिशिंग एरियाज हैं जो कि आपके टेम्परेट रीजन में हैं, ठंडे जो समुद्र हैं, और वहाँ पे फिश की डाइवर्सिटी भी कम है और फिशिंग एक्टिविटीज़ भी कम है. तो बेसिकली 19 पार्ट्स हैं, 19 फिशिंग एरियाज हैं टोटल वर्ल्ड में, जिसमें से 15 आपके 15 आर द मेजर फिशिंग एरियाज एंड 4 आर द माइनर फिशिंग एरियाज. आप यहाँ पे जो कोड देख रहे हैं ना, दीज आर द कोड. ओके, जैसे कि ये आप देख रहे हैं हेयर, ये 51 एंड 57 दिख रहे हैं, तो ये है आप इंडिया. यू कैन एबल टू लोकेट हेयर, दिस इज इंडिया. तो अगर इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, जो अरेबियन सी है, जो वेस्ट कोस्ट है, इट कम्स अंडर दी फिशिंग एरिया 51. और जो आपका ईस्ट कोस्ट है, जिधर आपका इंडियन ओशन का जो अंडमान सी आ जाता है, और इधर ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो पार्ट है, ये जो आता है, इट कम्स अंडर दी फिशिंग एरिया 57. ओके, सो ऐसे ही इन्होंने जो है डिफरेंट डिफरेंट फिशिंग एरियाज जो हैं वो उनको डिफरेंट नंबर्स दे रखे. सो नाउ हियर विल सी फिशिंग एरियाज. सो जो फिशिंग एरिया 21, 27, 31, 34, 37, 41 एंड 47, ये इतने सारे जो फिशिंग एरियाज हैं, बेसिकली दीज 7 फिशिंग एरियाज कम्स अंडर द अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी. ओके, ये आपका 21, 27, 34, 31, 34, 37. ओके, these 41, 47, they all comes under the Atlantic Ocean and Mediterranean Sea. फिर जो फिशिंग एरिया है 51, here you can see 51 and 51 and 57. Okay, it comes under the Indian Ocean. Then fishing area 61, 67, 71, 77, 81 and 87. It comes under the Pacific Ocean. Here you can see that 67, 77, 81, 87. Okay, they all comes under the Pacific Ocean. Okay, now these 4 areas 18, 48, 58 and 88, these 4 areas are minor fishing areas. अब तक आपके ऊपर के जो 15 areas थे, the area which comes under the Atlantic Ocean and Mediterranean Sea, Indian Ocean and Pacific Oceans, these fishing areas are the major fishing areas. And these 4 fishing areas 18, 48, 58 and 88, it comes under the minor fishing area, the Arctic and the Antarctic Ocean. So 88, okay, then 48, 18 and 58, they comes under the minor fishing areas. Okay,
नाउ देयर इज एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी है फिशिंग एरियाज का बेस्ड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द रीजन. ओके, सो एक है आपका टेम्परेट रीजन, टेम्परेट एरियाज, ठंडे वर्ग जो कि कहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम है, दैट इज ए 21, then 27, 37, 41, 61, 67 and 81. देन ट्रॉपिकल में जो है आपका इंडियन सी और अफ्रीका के पास का जो है 31, 51, 57, 71, they comes under the tropical area. Then upwelling areas like 34, 47, 77 and 87, ये कोड्स हैं फिशिंग एरियाज के. और फिर लास्ट में आपका द कोल्डर, ओके, द अटलांटिक एंड आर्टिक एरियाज, दैट इज 18, 48, 58 and 88. Okay, so now here we will see the fishing area wise capture. Okay, सो जस्ट सी, अगर यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट जो कॉलम है इसमें फिशिंग एरियाज के नंबर डिनोट्स किए हुए हैं. सो ये जो है शुरू के साथ दिस इज ऑफ द अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी. फिर ये दो जो है आपके इंडियन ओशन के हैं. फिर बाकी के ये आपके जो है 6 फ्रॉम पैसिफिक ओशन, और लास्ट के 4 जो कि माइनर हैं, दे आर फ्रॉम द अंटार्कटिक एंड आर्टिक एरियाज. ओके, सो अगर मैं ओशियन वाइज बात करूं तो जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, जो सबसे ज्यादा कैप्चर है, जो कैप्चर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, दैट इज इन आपका पैसिफिक ओशन. इफ हियर यू कैन सी दैट इन 2018 इट इज अबाउट 49.16 मिलियन टन्स. ओके, टोटल अगर परसेंट शेयर की बात करूं तो आप मतलब कि ये हो गया आपका पैसिफिक ओशन फर्स्ट है, फॉलोड बाय आपका अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी है विच इज 22.64 मिलियन टन्स. फिर आपका थर्ड रैंक पे आपका इंडियन ओशन है विच हैव द प्रोडक्शन और कैप्चर प्रोडक्शन ऑफ 12.28 मिलियन टन्स. मीन्स अगर ओशन वाइज में बात करती हूँ तो सबसे ज़्यादा कैप्चर प्रोडक्शन है वो पैसिफिक ओशन का है, फॉलोड बाय द अटलांटिक ओशन एंड देन द इंडियन ओशन. और जो सबसे बॉटम पे है, जो सबसे लीस्ट है, दैट इज द आर्टिक एंड अंटार्कटिक विच हैव ओनली 0.33 मिलियन टन. सो जो टोटल प्रोडक्शन है इन कैप्चर प्रोडक्शन है इन द 2018 इट इज 84.41 मिलियन टन्स. ओके, सो इसमें से आधे से भी ज्यादा जो कैप्चर प्रोडक्शन आता है वो आपका पैसिफिक ओशन